Welcome to the online lecture of Sharat V. More English High School. So today I'll teach you fourth chapter of maths. Fourth chapter is angles and pairs of angles. Okay. So here in this chapter we'll study about the angles and pair of angles. So first topic here is the interior and exterior of the angle. Okay. So first of all we all know what is angle. It is made up of three different non-collinear points, right? So the interior and exterior of the angle are the two different parts here. In the plane of the figure alongside the group of points like point N, point M, point T, which are not on the arms of the angles, form the interior on the angle PQR. Okay, here means angle, here it is the angle PQR, right? And the points which lies inside the arm, right? For example, here you can see point N, M, O, T. So these all are the interior points, right? So ये वाला जो part है that is lying inside the arm is called as the interior part of the angle. Okay, now exterior is what? Simply means outside part. PQR ये जो points है, PQR आपका जो angle है उसके outside का जो region है that is the exterior of the angle. Okay, now adjacent angles. What are the adjacent angles? Now here you can see that there are two angles, BMQ and QMD, right? And one big angle is BMD. So what are the adjacent angles? Angles having the vertex common and have the different interior. Okay, means they are having the separate interior and they has the one vertex common. For example, BMQ and QMD, right? So they are having the vertex M common, but they have the different interiors. Means का इसका interior different है, इसका interior different है, right? For example, if I will say BMD and BMQ, they are also having the same vertex, but उनका जो इंटीरियर है वो क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक दूसरे के अंदर लाया हो रहा है. सो दैट इज नॉट द एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स जिसका इंटीरियर क्या होगा, सेम होगा. सॉरी, जिसका जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स क्या होगा, मिड वर्टेक्स सेम होगा और दोनों का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो दैट इज द एडजेसेंट एंगल. ओके, नेक्स्ट 15 is based on the concept which I have explained you right now. Okay, observe the figure. Question number 1, practice set 15. Question number 1, observe the figure and complete the table of for angle AWB. Okay, now here you can see it is the angle AWB. So इसके लिए आपको क्या करना है, ये ऑब्जर्व करना है कुछ पॉइंट्स है जो इसके इंटीरियर में कुछ एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं, कुछ एग्जैक्टली आर्म्स पे, आर्म्स मतलब दो साइड है, राइट? ये वाली जो साइड है इस पे लाई कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स, राइट? सो इट इज़ वेरी सिंपल. आपको सिर्फ वो पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पर फिल करने हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट, points in the interior means the points which lie inside the angle, right? So what are those points? Point R, point N, point C and point X, right? So आपको क्या करना है, वन बाय वन लिखना है. Point R, point N, point X and point C. These are the points which lie in the interior of angle. Okay, understood? क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर मतलब जो आउटसाइड वाले रीजन पे लाई करें, है ना? सो देर आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, पॉइंट टी, यू, राइट? पॉइंट टी और यू हो गया एंड देन यहाँ पर पॉइंट क्यू एंड वी हो गया, क्यू वी एंड वाई, राइट? ओके, सो दैट आई विल राइट हियर पॉइंट टी, पॉइंट यू, point Q, point V and point Y, right? So these are the points which lie outside that is exterior of the angle. Okay, next, points on the arms of the angles मीन्स ऐसे points जो क्या है exactly arms पे lie कर रहे हैं, मीन्स ये जो side है ना, AWY जो दो side है उस पे lie करने वाले points, right? So the points which lie on the arm is point A, point W, point B, point G, right? These are the 4 points. Point A, W, G and B. मीन्स वो क्या है, ये जो लाइन फॉर्म कर रही है एंगल को उस पर एग्जैक्ट लाई कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड प्रॉपरली? फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर। ओके, अभी हम लोग ने एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन देखे, जिसका मिड वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक्सटीरियर सेपरेट होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे एंगल्स के पेयर्स फॉर्म करना है। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर कि जो ए एंड बी है ना, ये एक एंगल है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट एंगल, फर्स्ट पेयर। ओके, फर्स्ट क्या है, एंगल ए एंड बी। ओके, अब आपको ऑब्जर्व करना है ए एंड बी के साथ में कौन सा एडजेसेंट एंगल है, ए एंड सी, है ना। सो आप क्या लिखोगे, ए एन सी। अब देखो, ये साइड हम लोग ने देखे तो ए एन सी है, बट ये साइड भी अगर आप जाओगे, है ना, ए एन बी के साथ अगर ये साइड जाओगे तो क्या बन रहा है, दूसरा एडजेसेंट एंगल बी एन सी, है ना। तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंड पेयर ए एन बी के साथ में एक और एक जो है एंगल पेयर बना रहा है, वो है बी एन सी, है ना। फिर नेक्स्ट, अब सपोज ए एन सी ले रहे हैं हम लोग, सपोज ए एन सी, है ना। तो ए एन सी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बी एन सी, है ना। क्या हो जाएगा, बी एन सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वन, एंगल ए एन सी, एंगल बी एन सी, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब देखो ए एन बी हो गया, ए एन सी और ए एन बी, ये दोनों पैर हो गए हमारे, ये दोनों पैर हो गए, ये दोनों भी पैर हो गए, राइट। सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। ये फर्स्ट वाला हो गया, अब हम लोग को सेकेंड फिगर में ऑब्जर्व करना है। ओके, सो व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स पेयर्स। ओके, सो फर्स्ट वन देखो, पी क्यू आर एक है, हो गया। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या हो सकता है, पी क्यू टी, है ना। सो एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी, ये एक पैर हो गया, राइट। पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, राइट। देन नेक्स्ट, पी क्यू आर पी क्यू टी वी हैव कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट पैर कौन सा एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं हम लोग, क्यू टी एस। अब देखो, इसके साथ में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है एडजेसेंट, राइट। देन नेक्स्ट, पी क्यू आर पी क्यू टी। Okay, so there is only one pair of adjacent angle, that is PQR and PQT. Okay, because अब देखो, ये जो है इनका इंटीरियर भी सेपरेट है ना, इनका इंटीरियर भी सेपरेट है और इनका वर्टेक्स कॉमन है ना। तो ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, राइट। अदर देन दैट कोई एंगल नहीं है जिसका इंटीरियर सेपरेट और वर्टेक्स कॉमन है, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। आपको क्या बताना है, जो गिवन पैर पे एडजेसेंट एंगल है या नहीं, जस्ट इतना ही रीजन आपको बताना है। ओके, और अगर नहीं है तो उसका रीजन क्या है वो भी आप लोग को बताना है। सिंपल है, रीजन यही होगा कि उनका इंटीरियर सेपरेट नहीं होगा। ओके, नाउ पी एम क्यू एंड आर एम क्यू। सो पहले मैं हाईलाइट करती हूँ कि है कहाँ पर ये एंगल, ठीक है। सो हियर इट इज पी एम क्यू एंड हियर इट इज आर एम क्यू। वेरी सिंपल, दोनों का वर्टेक्स सेम है और इंटीरियर भी डिफरेंट है ना। तो इसके लिए क्या है, ये एडजेसेंट पैर है, राइट। सेकेंड, आर एम क्यू, ये वाला पैर आर एम क्यू एंड एस एम आर मीन्स एस एम आर। ओके, नाउ क्लियरली देखो, अब जो एस एम आर है उसका इंटीरियर इसके साथ में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब इसके इनसाइड लाई कर रहा है। सो इट इज़ नॉट द इंटीरियर, इट इज़ नॉट द एडजेसेंट एंगल्स पैर। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज द इंटीरियर इज नॉट सेपरेट, राइट, बिकॉज द इंटीरियर इज नॉट सेपरेट। नाउ थर्ड वन, आर एम एस एंड आर एम टी। आर एम एस, हियर इट इज आर एम एस, आर एम टी। अगेन इसमें भी क्या है, दोनों का इंटीरियर सेपरेट नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट द इंटीरियर, इट इज़ नॉट द एडजेसेंट एंगल पैर। नेक्स्ट, एस एम टी एंड आर एम एस, एस एम टी आर एम एस, ये दोनों का इंटीरियर सेपरेट है ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द एडजेसेंट एंगल पैर। ओके, understood properly. So here we have completed practice set 15.